بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے وہ عراق جو وقت کی گرد میں دب چکے ہیں، آج ہم انہیں اپنی عقیدت کی روشنی سے منور کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ قصہ ہے جس کا تذکرہ خالق کائنات میں خود اپنی لا ریب کتاب میں فرمایا۔ یہ قصہ ہے اصحاب کہف کا، یعنی غار والے۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ عقل انسانی کے لیے ایک ایسا تازیانہ ہے جو بتاتا ہے کہ جب ایمان پختہ ہو تو وقت کی نبضیں بھی تھم جایا کرتی ہیں۔ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ نہیں ٹلتا، چاہے کوئی 100 ہیلے 100 مکر ہی کر لے۔ جب وقت مقرر کی گھڑی آ کے کھڑی ہو، رستہ نہیں ملتا کوئی کتنا ہی سفر کر لے۔ سامعین محترم، آج سے صدیوں قبل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ایک پرانی بات ہو چکی تھی، تب روم کی زمین پر دقیانوس نامی ایک جابر حکمران کا ظہور ہوا۔ وہ شخص جس نے غرور کے نشے میں چور ہو کر انسانیت کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں ہی معبود ہوں۔ اس کے دربار میں وہی جاتا جو اپنی خودی کو نیلام کر دیتا۔ وہ کہتا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اس کی لاٹھی کا رخ ہمیشہ مظلوموں کی طرف رہتا۔ اس نے بت پرستی کو لازم کر دیا اور وحدانیت کا نام لینے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ شہر افسوس کی فضاؤں میں خوف کا پہرا تھا اور دیواروں کے بھی کان تھے، لیکن قدرت کا اپنا ہی ایک نرالا انداز ہے۔ جب فرعون کے گھر میں موسیٰ پل سکتے ہیں تو دقیانوس کے محل میں اللہ کے سپاہی کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ محل کے بلند و بالا ستونوں کے پیچھے ریشمی لباسوں کے اندر چند ایسے دل دھڑک رہے تھے جنہیں بتوں کی بے بسی پر ملال تھا۔ یہ نوجوان جن کے نام تاریخ نے میکسلمینا، تملیخا اور مارتونس بتائے، شاہی محل کے معزز ترین افراد تھے۔ ایک دن جب شہر میں بتوں کے نام پر عظیم میلہ لگا ہوا تھا اور قربانیوں کا خون بہایا جا رہا تھا، یہ نوجوان اس بھیڑ سے الگ تھلگ ایک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کا ضمیر پکار رہا تھا، افسوس، کیا ہم ان مٹی کے ڈھیروں کے سامنے جھک رہے ہیں جو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ سچائی سورج کی طرح ہوتی ہے، اسے بادلوں میں زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنس کو جنس سے کشش ہوتی ہے۔ ان نوجوانوں کے دل اللہ نے ایک ہی لڑی میں پرو دیے تھے۔ وہ وہاں ایک ایک کر کے جمع ہوئے جہاں صرف خدا کی خاموشی تھی۔ وہاں گفتگو لفظوں سے نہیں، آنسوؤں سے ہو رہی تھی۔ وہاں کوئی بلانے والا نہ تھا، مگر دلوں کو کھینچنے والی وہ مقناطیسی قوت موجود تھی جسے ایمان کہتے ہیں۔ جب یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے تو خاموشی نے گفتگو شروع کی۔ میکسلمینا، جو ان میں سب سے زیادہ صاحب فہم تھا، اٹھا اور بولا، بھائیو، ہم سب ایک ہی درد کے مارے ہیں۔ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ قوم جس کی عبادت کرتی ہے وہ سراسر بہتان ہے۔ انہوں نے آپس میں ایک عہد کیا، ایک ایسا عہد جو خون سے نہیں بلکہ روح سے لکھا گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کفر کے نظام میں مزید سانس نہیں لیں گے۔ انہوں نے اپنی آسائشوں کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتے بھی ان پر رشک کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہونٹوں پر سچائی ہو تو سر کی قیمت چکانی پڑتی ہے، مگر ان کے چہروں پر وہ سکون تھا جو صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جو خدا کو پا لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر حق کی وہ چنگاری جو ان نوجوانوں کے سینوں میں دبی تھی اب ایک شعلہ بن چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ خوشبو اور سچ کبھی چھپائے نہیں چھپتے، بالکل اسی طرح ان نوجوانوں کے بدلے ہوئے اتوار کی خبریں شاہی محل کی راہداریوں سے ہوتی ہوئی دقیانوس کے کانوں تک جا پہنچیں۔ دقیانوس، جس کے غصے سے زمین لرزتی تھی، اس نے فوراً ان نوجوانوں کو طلب کر لیا۔ وہ دربار جہاں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے، وہاں یہ چند نہتھے نوجوان خدا کے بھروسے پر کھڑے تھے۔ دقیانوس نے گرج کر کہا، تمہاری یہ مجال کہ میرے ملک میں رہ کر میرے ہی خدائی کا انکار کرو؟ ابھی وقت ہے، ان بتوں کے سامنے سر جھکا دو ورنہ موت تمہارا مقدر ہوگی۔
सच्चाई की ताकत का आलम तो देखिए। इन नौजवानों के चेहरों पर न खौफ था और न पशेमानी। वो जानते थे कि हक पर कट मरना बातिल के सामने जीने से बेहतर है। उनमें से एक ने आगे बढ़कर वो तारीखी जवाब दिया जो रहती दुनिया तक के लिए दलील बन गया। हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का परवरदिगार है। हम उसके सिवा किसी और को माबूद पुकार कर बहतान नहीं बांध सकते। अगर तुम्हारे इन बुतों में कोई जान है तो बुला लो इन्हें अपनी मदद के लिए। दकियानूस हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि रेशम और अतलस में पले हुए ये अमीरजादे मौत की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। उसने गुस्से में आकर उनके शाही लिबास उतारने का हुक्म दिया और चंद दिन की मोहलत दी ताकि वो अपने फैसले पर गौर कर सकें। मगर उसे क्या मालूम था कि जिसने हक का जायका चख लिया हो वो दुनिया की लज्जतों की तरफ लौटकर नहीं देखा करता। जब मोहलत के दिन खत्म होने को आए तो इन नौजवानों ने फैसला किया कि अब इस शहर से कूच कर जाना ही ईमान की बका है। रात की तारीकी में जब दुनिया सो रही थी, ये अल्लाह के सिपाही अपने घर बार, अपनी जायदादें और अपनी आसाइशों को अल्लाह की रजा के लिए छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जिसके दिल में भी अल्लाह ने हिदायत की जोत जगा दी थी। वो चरवाहा भी उनके साथ हो लिया और उसके साथ उसका एक कुत्ता भी था। ये वही कुत्ता है जिसका जिक्र कुरान पाक में उसकी वफादारी की वजह से हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। दुश्वार गुजार रास्ते थे, पथरीली जमीन थी और पीछे शाही फौज का खौफ, मगर उनके कदमों में वो सबात था जो पहाड़ों में भी नहीं होता। वो मुसलसल चलते रहे, यहाँ तक कि सामने वो गार आ गया जो आज भी तारीख के सीने पर एक राज बनकर ईस्तादा है। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। गार के दहाने पर पहुंचकर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हिदायत का रास्ता आसान कर दे। वो जैसे ही गार के अंदर दाखिल हुए, थकन और बेचैनी दूर होने लगी। अल्लाह ने उन पर ऐसी पुरसुकून नींद तारी कर दी कि वक्त की कैद से वो आजाद हो गए। गार के दरवाजे पर वो कुत्ता अपने पांव फैलाए पहरा देने लगा, ऐसा पहरा कि अगर कोई उसे देखता तो हैबत से उसका जिगर फट जाता। सूरज की शुआएं भी गार के अंदर दाखिल होते वक्त अपना रुख बदल लेती ताकि अल्लाह के इन प्यारों की नींद में खलल न पड़े। तारीख थम गई, सदियां गुजरने को थीं, मगर वो बेखबर सो रहे थे। वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इनकी ये हिजरत रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे गई कि अगर ईमान बचाना हो तो दुनिया छोड़ना घाटे का सौदा नहीं है। वक्त की बिसात उलट चुकी थी, सदियां गुजर गईं, सल्तनतें मिट गईं और बड़े बड़े तख्तो ताज मट्टी में मिल गए, मगर उस गार के हिसार में वक्त की गर्दिश जैसे थम सी गई थी। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और उन नौजवानों की आंखें खुली। वो ऐसे बेदार हुए जैसे कोई गहरी नींद से बस चंद घंटों बाद जागता है। उनके जिस्मों में वही ताजगी थी और दिलों में वही खौफ जो सोते वक्त उनके साथ था। एक ने दूसरे से पूछा, हम यहाँ कितना अरसा रहे? जवाब मिला, शायद एक दिन या इससे भी कम। वो मासूम क्या जानते थे कि उनके सोते में जमीन पर कितने ही सूरज डूब चुके हैं और कितनी नस्लें बदल चुकी हैं। जब भूख ने सताया तो तमलीखा को चंद सिक्के देकर शहर की तरफ भेजा गया। उसे ताकीद की गई कि बहुत एहतियात से जाना, कहीं जालिम बादशाह के सिपाही तुम्हें पहचान ना लें। तमलीखा जब गार से बाहर निकला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जमीन का नक्शा ही बदल चुका था। वो रास्ते जो उसे जुबानी याद थे अब अजनबी हो चुके थे। वो दरख्त जो कल तक हरे भरे थे अब मट्टी का ढेर बन चुके थे। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो शहर जहां कल तक बुतों की पूजा होती थी, आज वहां की फिजाओं में अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही थीं। हर तरफ अमन का परचम था और लोगों के चेहरों पर सजदों का नूर था। सच है कि वक्त हर जख्म का मरहम है, मगर यहाँ तो वक्त ने पूरी तारीख ही पलट दी थी। वो जिसे अपना दुश्मन समझकर छुपे थे, वो दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। तमलीखा परेशान था कि ये सब एक रात में कैसे हो गया। वो नहीं जानता था कि उसकी एक रात दरअसल 300 साल लंबी थी। तमलीखा जब एक दुकान पर पहुंचा और रोटी खरीदने के लिए अपना सिक्का निकाला तो गोया एक तूफान आ गया। दुकानदार इस सिक्के को देखकर दंग रह गया, क्योंकि ये सिक्का तो सदियों पुराना था।
ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग चौक दर चौक जमा हो गए और मामला इस दौर के आदिल बादशाह तक जा पहुंचा। ये वो वक्त था जब लोग मरने के बाद दोबारा जी उठने पर बहस कर रहे थे। अल्लाह ने इन नौजवानों को एक जिंदा मोजज़ा बनाकर दुनिया के सामने पेश करना था। जब तमलीखा को दरबार में लाया गया तो उसने रोते हुए अपनी बस्ती का पता पूछा और दकियानूस का नाम लिया। बादशाह और दरबारियों पर जैसे सख्ता तारी हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ए नौजवान, तुम जिस बादशाह का नाम ले रहे हो उसे मरे हुए 300 साल बीत चुके हैं। तुम जिस बस्ती को तलाश कर रहे हो वो अब तारीख के सफ़ों में दफन हो चुकी है। तमलीखा का दिल लरज उठा। उसे एहसास हुआ कि वो अल्लाह की कुदरत के एक अजीम शान मोजज़े का हिस्सा बन चुके हैं। बादशाह और हजारों का मजमा उनके साथ गार की तरफ रवाना हुआ ताकि इस सच्चाई को अपनी आंखों से देख सके। जब गार के करीब पहुंचे तो तमलीखा ने दरख्वास्त की कि उसे पहले अंदर जाने दिया जाए ताकि वो अपने साथियों को हकीकत बता सके। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह ने उन पर दोबारा मौत की पुरसुकून चादर तान दी। वो बेदार तो हुए थे मगर सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि अल्लाह के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब लोग अंदर दाखिल हुए तो वहां सिर्फ नूर ही नूर था और उन नौजवानों के मुबारक जिस्म जो हमेशा के लिए अबदी नींद सो चुके थे। तारीख गवाह है कि जिसने अल्लाह के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, अल्लाह ने उसका नाम मिटने नहीं दिया। आज भी उनका तस्करा ईमान वालों के दिलों को तड़पाता है और वो गार आज भी पुकार पुकार कर कह रहा है कि जो रब 300 साल तक बगैर खाए पिए सुलाकर उठा सकता है, वो बूसीदा हड्डियों में भी दोबारा जान डाल सकता है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। असहाबे कहफ का ये किस्सा महज तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि ईमान की वो बुनियाद है जो हमें ख्वाब गफलत से जगाती है। ये गार आज भी पुकार कर कहता है कि जमाने की गर्दिशें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिनका भरोसा अल्लाह की जात पर होता है। दकियानूस मिट गया, उसका तख्त खाक हुआ और उसका नाम इबरत बन गया, मगर वो नौजवान आज भी सितारों की तरह चमक रहे हैं। अल्लाह ने इस मौजज़े से साबित कर दिया कि क़यामत बरहक है और जो रब 300 साल बाद उठा सकता है वो मट्टी से दोबारा जिंदगी देने पर भी कादिर है। आज की मादी दुनिया में हमें भी अपने हिस्से का गार यानी तकवा और ईमान की पनाहगाह तलाश करनी होगी। एक शायर ने बहुत खूब कहा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। अल्लाह हमें ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वो राजी हुआ। वस्सलाम फी अमानिल्लाह।